لے سکتی ہیں، وہ کتاب حاصل کر سکتی ہیں. یہ بہترین موقع ہے. آئیے شبینہ ادیب صاحبہ، آپ کا تمام لوگ بےتابی سے انتظار کر رہے تھے. تشریف لائیں. لیکن شبینہ باقی ہے ابھی. صدر مشاعرہ محترمہ ڈاکٹر صاحبہ، مہمان خصوصی، دیگر مہمانان، کئی برس سے اس محفل کا ایک انتظار کہ آپ سب کے بیچ آنے کا موقع ملے. میں شکر گزار ہوں کیونکہ امروہہ ہمارے ہندوستان کی ایک ایسی تاریخی سرزمین ہے جہاں بڑی عظیم عظیم شخصیتیں، اور جن میں ایک نمایاں نام بڑے بھائی نور امروی صاحب کا، تو کیوں نہ ایک ایسا ہی نیا کارنامہ انجام دیا انہوں نے مجھے بلا کر بھی. اور اس محفل میں چونکہ پانی میں ہم سب کیا بیری تیر رہے ہیں اس وقت، شاعری کی ایک خوبصورت فضا میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو اور جو ان کا مشن ہے، آج مجھے بھی آ کر بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی. مجھے ایک شعر بھی پڑھنا ہے. محترم نے بڑی خوبصورت تقریر فرمائی تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی کیوں نہ اس ذمہ داری کو نبھاؤں. اس کے لیے ایک مطلع پڑھتی ہوں. بڑی خوبصورت سماعتیں ہیں. بالکل ایسا لگا ہی نہیں کہ میں کسی باہر کی محفل میں ہوں، ایسا لگا کہ اپنوں کی محفل میں، گھر کی محفل میں کا حصہ بنی ہوں. تو ایک بار مجھے اجازت دے دیجیے تاکہ میں اپنی شاعری کی شروعات میں جس موڈ میں پڑھنا اس پورے موڈ میں میں شریک ہو سکوں اس محفل میں، اور آپ سب کی دعائیں، آپ سب کی محبتیں اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جا سکوں. مطلب پڑھتی ہوں، اس کے بعد وہ شعر جو اس تنظیم کا مشن ہے وہ میں سنانا چاہتی ہوں. مطلب ملاحظہ کریں، سنیں. ہمیں بنا کے تم اپنی چاہت، خوشی کو دل کے قریب کر لو. ہمیں بنا کے تم اپنی چاہت، خوشی کو دل کے قریب کر لو. تمہیں ہم اپنا نصیب کر لیں، ہمیں تم اپنا نصیب کر لو. ہمیں بنا کے تم اپنی چاہت، خوشی کو دل کے قریب کر لو. تمہیں ہم اپنا نصیب کر لیں، ہمیں تم اپنا نصیب کر لو. ہمیں بنا کے ایک شعر سناتی ہوں، آپ کو اچھا اور سچا لگے. اس مشاعرے کا مشن اور ایک معمولی سی شاعرہ کا یہ شعر اگر آپ کو یاد کرے تو آپ مجھے دعائیں دیجئے. میں وہ شعر پڑھنا چاہتی ہوں. سنیں. غریب لوگوں کی عمر بھر کی غریبی مٹ جائے اے امیروں. غریب لوگوں کی عمر بھر کی غریبی مٹ جائے اے امیروں. بس ایک دن کے لیے اگر تم ذرا سا خود کو غریب کر لیکن تالیاں تھوڑی سی کمزور لگی. جاگنے کا وقت ہے تو پورے طور پر ہم جاتے ہیں اور آپ کی محبتیں میں بھرپور اپنے دامن کے لیے بہت اچھا شعر ہے. سلام کرتی ہوں آپ بہت خوبصورت شخصیات کو پیش کرتی ہوں. یہ شعر سب کچھ کہہ دیا آپ نے. بہت بہت شکریہ. غریب لوگوں کی عمر بھر کی غریبی مٹ جائے اے امیروں. بس ایک دن کے لیے اگر تم ذرا سا خود کو غریب کر لو. بنا کے تم اپنی چاہت، خوشی کو دل کے قریب کر لو. بہت نوازش، کرم مہربانی. 4 مصرے میں بالکل تازہ پڑھنا چاہتی ہوں. آپ بھی پہلی بار سن رہے ہیں کیونکہ میں نے کل سے جب سے آئی ہوں میں نے جو محسوس کیا ہے
आप सब तो न जाने कब से महसूस करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं समझती हूँ कि सभी परदेसी हैं। तो मैंने जो महसूस किया है वो मैं 4 मिसरे में पेश करना चाहती हूँ। मुलाहिजा कीजिएगा, हमारे खास आपकी शिरकत और आपकी तवज्जो मुलाहिजा करें। देखिए कि परदेसी धरती पर सब कुछ अच्छा अच्छा है, लेकिन सुने, परदेसी धरती पर सब कुछ अच्छा अच्छा है, लेकिन अपनी ज़मीं का जर्रा जर्रा आंख का काजल लगता है। अपनी ज़मीं का जर्रा जर्रा आंख का काजल लगता है। गैर वतन में फूल के बिस्तर पर भी वो आराम कहाँ। गैर वतन में फूल के बिस्तर पर भी वो आराम कहाँ। अपने वतन का कच्चा घर भी शीश महल सा लगता है। अपने वतन का कच्चा घर भी शीश महल सा लगता है। अपने वतन का कच्चा घर भी शीश महल सा लगता है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद गजल के कुछ अशार मुलाहिजा करें। देखें, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कहे दीजिए, मर जाऊंगी। बस मुझे बेवफा कह दीजिए, मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। 4 मिसरे ये भी पेश करती हूँ कि इश्क भी लोग तिजारत की तरह करते हैं। इश्क भी लोग तिजारत की तरह करते हैं। हम यही काम इबादत हम यही काम इबादत की तरह करते हैं। जिनको दौलत से ज्यादा नहीं प्यारा कुछ भी। जिनको दौलत से ज्यादा नहीं प्यारा कुछ भी। वो मोहब्बत भी सियासत की तरह करते हैं। वो मोहब्बत भी सियासत की तरह करते हैं। जिनको दौलत से ज्यादा नहीं प्यारा कुछ भी। वो मोहब्बत भी सियासत की तरह करते हैं। चंद अशार बड़ी खूबसूरत समाते बहुत। और पढ़िए। नहीं है, पहले वो सुना। अच्छा चलिए मैं अच्छा लेकिन मेरा ताली वाली पूरे मुझे बार मैं आपसे कहूँ कि ये कतई इस महफिल की तहजीब के खिलाफ है कि मैं आपसे तालियों के लिए कहूँ कि आप ताली बजाएं। लेकिन अगर आपको लगे कि मैं कुछ शेर सुना रहा हूँ तो कम से कम अपनी मौजूदगी का एहसास ताकि मुझे महसूस होता रहे कि आप हमारी शायरी में पूरी तरह से शरीक हैं और आप मेरी हौसला अफजाई करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पे मैं पढ़ना तो कुछ और चाहती थी। काफी तादाद मेरी बहनों की है, लेकिन बहरहाल वो बाद में मोहतरम नूर अमरोगी साहब का हुक्म सर आंखों पे मैं पेश करती हूँ। मुलाहिजा कीजिएगा, चंद शेर में पेश करती हूँ वो गजल जिसके लिए आप सब ने मुझे हुक्म दिया है। मैं हाजिर हूँ, पढ़ती हूँ। चलिए जल्दी पढ़ दूं फिर तो। खामोश लब हैं
झुकी हैं पलकें, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं। बस ऐसा महसूस कराएं कि आप पहली मर्तबा इस गजल को सुनिए, तो मैं भी पूरे मूड में इस गजल को पढ़ सकूं आपकी खिदमत में। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई। खामोश लब है, बहुत शुक्रिया। खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। शेर मुलाहिजा करें, अभी अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी चाहत नहीं। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, बाहर का आज पहला दिन, चलो चमन में टहल के आए, बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए, फज़ा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है, खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। एक शेर जिसे आप सब बहुत अच्छा लगता है आप सभी को, वो शेर मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, आप सबका हुक्म है। बतौर खास जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है आपकी तवज्जो और ये शेर, जो खानदानी रईस है वो, जो खानदानी रईस है वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं। मैं हाजिर हूँ, जो खानदानी रईस है वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है, खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। एक शेर मैंने अपने मुशायरे के डाइस के लिए कहा है, खास तौर से मैंने हिंदुस्तान में ऐसे देखा है, कई मुशायरे ऐसे होते हैं कि अभी कुछ जो चंद नए हमारे शायर जो आए हैं, शोरा आए हैं, मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने हमारी तहजीब को मजरूह करने की कोशिश की है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सच बात मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि हमारी तहजीबें कल ये हुआ करती थी, जब हमने शायरी का सफर शुरू किया था तो हमारा कोई सीनियर बैठा होता था तो हम जाकर बिल्कुल पीछे बैठते थे, क्योंकि यही हम अपने बड़ों से सीखते थे और यही सिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन जब हमने ये तहजीब
मजरूह होते हुए देखी तो मैंने ये शेर कहा। मैं आप सबकी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ और ये शेर आपकी खिदमत में पढ़ती हूँ। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आज बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आज बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं। बहुत शुक्रिया। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नहीं। इख्तिसार के मायने हमें भी मालूम है। अच्छा चलिए मैं एक गजल के 2-3 शेर पढ़ती हूँ। मुझे आप पढ़ना लगा, आप चलिए मैं सुनाती हूँ, पेश करती हूँ एक गीत। मैं चाहती हूँ क्योंकि गजलें सभी ने पढ़ी तो मैं एक गीत के लिए, मुझे बशर भाई ने हुक्म दिया है कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, तो बहरहाल मैं कोशिश करती हूँ कि इसके चंद बंद मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ, आप सबको सुना करूँ। मुलाहिजा करें, सुने। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमीन पे कलियां बिछा रही हूँ। शायरी के कदरदान मौजूद है, मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ सुना सकूं। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमीन पे कलियां बिछा रही हूँ। कभी तो आओगे लौट कर तुम, इसलिए घर सजा रही मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमीन पे कलियां बिछा रही हूँ। कभी तो आओगे लौट कर तुम, इसीलिए घर सजा रही हूँ। दिए मुंडेरों बंद पेश करती हूँ, मुलाहिजा करे देखें। कभी तो उतरेगा चांद छत पर, सुने। कभी तो उतरेगा चांद छत पर, कभी तो चमकेगी मेरी किस्मत। कभी तो उतरेगा चांद छत पर, कभी तो चमकेगी मेरी किस्मत। कभी तो जागेगी याद बनकर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत। कभी तो जागेगी याद बनकर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत। इसीलिए तो हथेलियों पर मैं आज मेहंदी लगा रही हूँ। बहुत शुक्रिया। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमीन पे कलियां बिछा रही हूँ। और ना मेरी गजलों में तितलियों के हसीन रंगों की दास्तां है, ना शाहजादों की है
ना कहकशां है, ना मेरी गजलों में तितलियों के हसीन रंगों की दास्तां है, ना शाहज़ादों की है कहानी, ना कोई जुगनू ना कहकशां है। मैं बज़्म शेरो सुखन में सबको तुम्हारा किस्सा सुना रही बहुत शुक्रिया कि ना मेरी जी मैं हाजिर हूँ, ना मेरी गजलों में तितलियों के हसीन रंगों की दास्तां है, ना शाहज़ादों की है कहानी, ना कोई जुगनू ना कहकशां है। मैं बज़्म शेरो सुखन में सबको तुम्हारा किस्सा सुना रही हूँ, दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियां बिछा रही हूँ। और देखे कि ज़मीं के जख्मों को फूल करने घटा भी घिर घिर के आ रही है, ज़मीं के जख्मों को फूल करने घटा भी घिर घिर के आ रही है। मैं दूर तुमसे पड़ी हुई हूँ, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। मैं दूर तुमसे पड़ी हुई हूँ, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। फज़ा में बरसात हो रही है, मैं आंसुओं में नहा ज़मीं के जख्मों को फूल करने घटा भी घिर घिर के आ रही है। मैं दूर तुमसे पड़ी हुई हूँ, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। फ़ज़ा में बरसात हो रही है, मैं आंसुओं में नहा रही हूँ, दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियां बिछा रही हूँ। बंद बतौर खास मैं पढ़ना चाहती हूँ कि बिना तुम्हारे हयात कैसी, बिना तुम्हारे हयात कैसी, ये खुशनुमा कायनात कैसी, ये खुशनुमा कायनात कैसी, मेरी तमन्नाएं मर रही हैं कि मैं हूँ एक जिंदा लाश जैसी, मेरी तमन्नाएं मर रही हैं कि मैं हूँ एक जिंदा लाश जैसी। मैं जिंदगी जी कहाँ रही हूँ, मैं जिंदगी को निभा रही ये मुंडेरों पे रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियां बिछा रही हूँ। आखिरी बंद कर आप सबसे इजाजत कि ये क्या ताल्लुक है चाहतों का, ये क्या ताल्लुक है चाहतों का कि मैं ही रोती रहूं हमेशा, कि मैं ही रोती रहूं हमेशा। ये कैसी
کہ غم اکیلے سہوں ہمیشہ. یہ کیسی رسمیں ہیں دل کی آخر کہ غم اکیلے سہوں ہمیشہ. کبھی تو تم بھی مجھے یہ لکھو کہ میں تمہیں یاد آ رہی ہوں. رکھ رہی ہوں زمین پہ کلیاں بچھا. واہ 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 واہ. ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت سارے ہندوستان پاکستان کے شعراء اکرام کو اسٹینڈنگ اویشن دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور چاہتا بھی ہوں کہ شبینہ ادیب صاحبہ ایسی غزل کی شاعرہ ہیں شاید کہ ان کے لیے اسٹینڈنگ اویشن آپ کو دیں گے. خواتین حضرات شبینہ ادیب صاحبہ شبینہ ادیب صاحبہ کو اصل میں ابھی کنارا بھی نہیں آئے گا. بہت اچھا کام کیا سے بہت دور ہے کرسی. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کس طرح کو سرائیں. یہ صحیح کیا لیکن ابھی جہاں ہم لوگ نا آئیے آخر میں ہم چلتے ہیں آخر شاعر کی جانب. آپ جی اچھا صدر محترمہ کی اصل میں وہ حکم کہہ لیجیے گا. آپ کو پتہ ہے صدر کے نام آنے تو پورے گورنمنٹ کام سے چلی جاتی ہے, سب پہ پانی پھر جائے گا. ان کی خواہش یا ان کا حکم یہ ہے کہ میں بشر صاحب سے چرن سنگھ بشر صاحب سے پہلے پڑھ دوں. ڈاکٹر شمسہ قریشی صاحبہ ہمارے شہر کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کو الحمدللہ کوئی بھی محفل ہو ان کے بغیر نامکمل مانی جاتی ہے. آج کی اس محفل میں ان کی سرپرستی حاصل ہے, ان کی صدارت ہے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا کلام عطا فرمائیں. مطلب وہ بریک سے مار رہا ہے. جہاز ٹھکانے لگ آپ رہا کی سماعتوں کی نظر کچھ ٹھکانے لگ رہا. خندے گل مثال رہتا ہے, خندہ گل مثال خندے گل مثال رہتا ہے, دل میں اس کا خیال رہتا ہے. کیا خندے گل مثال رہتا ہے, دل میں اس کا خیال رہتا ہے. میری آنکھوں کے سامنے ہر دم, واہ میری آنکھوں کے سامنے ہر دم اس کا حسن و جمال رہتا ہے. واہ واہ. میری آنکھوں کے سامنے ہر دم اس کا حسن و جمال رہتا ہے. وہ جو ماضی میں کچھ نہیں کرتے, وہ جو ماضی میں کچھ نہیں کرتے, ان کا دشوار حال رہتا ہے.